executive producer of Before You Motion Pictures, to please come forward and take the proceedings further. Good evening, everyone. I'd first like to thank each one of you for being here today and apologize for the delay that has happened. I'd also like to thank my cast, Huma, Saqib, and Ria, for being here today. It's a very special day for all of us today because we're going to be seeing our trailer from Dobara See Your Evil for the first time on a big screen. The trailer got released last week, exactly 1 week back actually, on digital platforms. And I'm very happy to share with all of you that in the last 1 week, amongst many trailers, other communication of films that have come out, it's been the most viewed Hindi film communication or trailer that has been there across digital platforms. It's the most shared trailer on Facebook for the past 1 week, and we are extremely happy with the response that we got from the people, from media, and everyone in general. So today, we shall watch the trailer, after which we shall also watch the first song from the film Kari Kari for the first time out here for all of us, including the cast. We will be watching it for the first time on the big screen. Yeah, so without further ado, we'll watch the trailer now. It's been portrayed by Saqib and Huma, which is this first song called Kari Kari. This track in its rendition tries to also bring forth their memories and their past, which is what they're revisiting in the film called Dobara. We can talk about the song after we played it out, but let's just watch it now for the first time on the big screen. There you go. And the production team, the producers, Jivanji, please. Thank you. Yeah. Yeah. Yes, please. Please. Table remove. We'll take this further. As Anirudh had said, this is for the first time the song has been unveiled. And I want to ask the talent, how is your reaction to the first look of the song? हाय गुड इवनिंग एवरीवन थैंक यू सबसे पहले तो आप सब लोग यहाँ पे आए और हम लोग थोड़ा लेट हो गए बट थैंक यू फॉर स्टेइंग ऑन आप लोगों को गाना कैसे लगा हाँ नो ऑनेस्टली गिव अस योर फीडबैक व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द सॉन्ग इट्स अ वेरी आई हैड हर्ड द सॉन्ग बिफोर बहुत ही ब्यूटीफुल बहुत सोलफुल गाना है और जो फिल्म का मूड है उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करता है दोनों जो भाई बहन का पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे बीच का जो एक इमोशनल जर्नी है उसको पोर्ट्रे करता है एंड लॉट ऑफ द फुटेज दैट यू सी वो फिल्म से ही ली गई है तो अलग अलग सीक्वेंसेस हैं हमारे पास को लेके मैंने पहले भी कहा है दोबारा जो फिल्म है एक भाई बहन की कहानी है जो ऑब्वियसली बहुत साल बाद मिलते हैं एंड उनके पास्ट में जो हुआ था एक बहुत ही एक घटना घटी थी उनके बचपन में और जब वो बहुत साल बाद मिलते हैं तो उस सारी मेमोरी को दोबारा रीलिव करते हैं and it's quite painful, it's quite emotional. So I think this song really beautifully captures that. That's what I have to say. Firstly, thank you so much, guys, for turning up.
and we are really very sorry that we kept you waiting. और हमने भी आज पहली बार ये गाना देखा कारी कारी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. आई थिंक व्हाट द सॉन्ग डज इज टेल यू अबाउट वन फेटफुल नाइट, जो इंसिडेंट उस दिन हुआ, और दो पॉइंट ऑफ व्यूज, एक बहन का पॉइंट ऑफ व्यू कि उस रात को एक्चुअली क्या हुआ था, और एक भाई का पॉइंट ऑफ व्यू कि उस रात को क्या हुआ था. एंड आई थिंक हमारी फिल्म जो है वो भी इसी बारे में है, कि जो भाई बहन है वो दोबारा अपनी मेमोरीज को रीलिव करते हैं, और उनके साथ जो 10-12 साल पहले घटना घटी होती है वो उसको वापस याद करके अपना एक एक वर्जन देते हैं. सो आई थिंक द सॉन्ग डज अ ग्रेट जॉब इन ब्रिंगिंग दैट आउट, एंड सो वेल डन गाइस, या गुड सॉन्ग, गुड सॉन्ग. अभी मुझे तो ये दोनों भाई बहन बहुत पसंद है वैसे भी तो ऑन स्क्रीन आई थिंक दैट इट्स वेरी नाइस कि अ रियल लाइफ सिबलिंग इज ऑन द कैमरा एज अ रियल लाइफ सिबलिंग, एंड दैट्स ब्यूटीफुल टू सी, क्योंकि फिर उसमें जो इमोशंस है वो काफ़ी रियल है. अभी आपको जो आपके भाई के लिए फीलिंग आती है, आपको जो आपके बहन के लिए फीलिंग आती है, दैट्स जस्ट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर फीलिंग इन द वर्ल्ड. और मुझे लगता है ये जो गाना है कारी कारी, इसने उसको बहुत अच्छी तरह कैप्चर किया है. एंड देर इज़ एन इमोशनल एंगल टू द फिल्म विच आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड कि ये भी है, क्योंकि इस सब के बीच में देर इज़ द स्ट्रगल एंड द पेन दैट दिस ब्रदर एंड सिस्टर गोइंग थ्रू, विच आई थिंक इज़ पोर्ट्रेट ब्यूटिफुली. थैंक यू. I mean, very little to say for me in terms of fresh from the song point of view, because we've been quite engaged in making and working on the song. So I'm quite glad that all of you have liked it. It's important that the audiences also like it. And I think, like they mentioned very rightfully, that generally when we talk about horror films and the communication that goes out, there is a certain kind of perception around it. And there's a certain kind of perceived notion that it would be there would be some scares, there would be some chilling moments, and then there would be a certain kind of projection to it. However, I would like this opportunity to tell you that there is a completely different kind of space that this film takes, which is why in the first place we decided to make this film, and Kari Kari brings that out beautifully, which is the emotional journey of the brother and sister, and that's very important in a film like this, and that's the reason why we chose to go with a subject and a film like this, as opposed to any horror subject. So, yep. Steven? We'll open it for a Q&A now. Hi, this is Ravi Kumar from News Helpline. साकिब और हुमा, आप दोनों से सवाल है. फिल्म का ट्रेलर काफ़ी इंट्रिगिंग है और काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है लोगों द्वारा, और आपसे जानना चाहूँगा कि इस फिल्म के अंदर आपको क्या लगता है, आप दोनों को क्या लगता है कि कितना पोटेंशियल होगा फिल्म के अंदर, और ये जो जॉनरा है इस जॉनरा को कितना बढ़ावा मिलेगा, हॉरर जॉनरा को फिल्म के ज़रिए. जैसा कि अभी अनुरुद्ध ने कहा, हॉरर फिल्में हमारे देश में एक तरीके से बनाई जाती हैं, एंड बहुत मतलब एटलीस्ट मैंने तो बहुत टाइम से कोई अच्छी हॉरर फिल्म देखी नहीं है. और ख़ासकर जिस तरीके से फिल्म्स बनाई जाती हैं, जो उनका कंटेंट होता है, वो एक बहुत बड़ी ऑडियंस को, जो फैमिली ऑडियंस है हमारे देश की, उसको वो कट जाती है. आई थिंक ऐसा साकिब और मेरा दोनों का मानना है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ there's a huge chunk of this audience in this country that want to see horror, and they want to see clean good horror in its purest sense. तो क्योंकि हम दोनों भाई बहन हैं इस फिल्म में, तो फैमिली फिल्म तो वैसे है ही, तो और यहाँ पे भी हमने अटेम्प्ट किया एक फैमिली हॉरर फिल्म बनाए. अब उम्मीद करते हैं कि हमारा जो विश्वास है, जो कन्विक्शन है, दैट विल ट्रांसलेट. आई वुड लाइक टू थिंक ऑफ दोबारा एज अ हाई कॉन्सेप्ट लो बजट हॉरर फिल्म इन इट्स प्योरेस्ट सेंस, जो मुझे लगता है कि इट विल फाइंड अ लॉट ऑफ रेजोनेंस नॉट जस्ट विद फैमिलीज, विद यंग पीपल. हम लोग बहुत सारी हॉरर फिल्म्स देखते हैं, मतलब एंड वी वॉच देम एंड गो लाइक कि हम लोग इतनी बाकी अच्छी फिल्में बनाते हैं, हॉरर जॉनर में आके हम क्यों एकदम सडनली एकदम पिछड़ जाते हैं. एंड क्योंकि रिलेटिविटी मीडिया है इस फिल्म से एसोसिएटेड, सो और ये उन्हीं की एक फिल्म है, एक बहुत ही पॉपुलर सक्सेसफुल फिल्म है ऑक्यूलस, जिसका हम ऑफिशियल रीमेक कर रहे हैं, एडेप्टेशन कर रहे हैं. ऑफ कोर्स क्योंकि हिंदुस्तान में बनाएंगे तो कुछ कैरेक्टर्स चेंज करेंगे, कुछ इंडियनाइज करेंगे, इमोशन और डालेंगे, क्योंकि उसमें तो एक्टर्स थे, यहाँ तो आप असली भाई बहन को कास्ट किया है, तो कुछ तो केमिस्ट्री होगी उसमें.
So this is our humble attempt at making a pure horror film for a larger audience. देखिए हमें एक बात तो मान लेनी चाहिए कि अब जो भूत हमारी पहली पिक्चरों में होते थे कि जो मुंह पे पाउडर लगा के और 2 कट होंगे उनके मुंह पे और हम डर जाएंगे, वो वहाँ से तो हमें इवॉल्व हो जाना चाहिए. आई थिंक हम हर जॉनरा में इवॉल्व हो रहे हैं. वी आर मेकिंग ग्रेट फिल्म्स, एज इन द लास्ट ईयर वी मेड सम फैंटास्टिक फिल्म्स. सिर्फ यही एक ऐसा जॉनरा है जहाँ पर हम फंस जाते हैं और हम इस जॉनरा के साथ 2-3 चीज़ों को अटैच कर देते हैं. वेदर देर इज़ अ सेक्स एलिमेंट इन द फिल्म, और वेदर देयर सम स्लीज, और या एकदम कोई क्लब गाना आ जाएगा या कोई स्लो रोमांटिक गाना आ जाएगा. जो गाना आपने अभी देखा, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों भाई बहन का, बट ये कभी भी एट नो पॉइंट कम्स इन द फिल्म एंड डिस्टर्ब्स द स्क्रीन प्ले ऑफ द फिल्म. सो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जब बाहर से पिक्चरें आती हैं, जैसे देयर वाज अ हॉरर फिल्म दैट केम लास्ट ईयर फ्रॉम हॉलीवुड कॉल्ड, नॉट लास्ट ईयर, अ कपल ऑफ इयर्स बैक, कॉल्ड कॉन्ज्यूरिंग. इट कम्स डाउन हियर एंड डज ग्रेट बिजनेस, गेट्स अ लॉट ऑफ लव. सो इससे ये एक बात तो पता चलती है कि एक ऑडियंस ज़रूर है एक हॉरर फिल्म की. और इसीलिए ये हमारा अटेम्प्ट है टू गो एट दैट हॉरर जॉनरा कि यार जो इंडिया एक हॉरर फिल्म डिजर्व करती है, एक हम उनको एक जेन्युइन स्पूकी हॉरर फिल्म दे दें. एंड दैट्स व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू विद दिस फिल्म. से समथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, please. सोशल मीडिया में काफ़ी तारीफ हो रही है आपकी ट्रेलर की, तो इंडस्ट्री से किसी